امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ ڈیل ہونے پر پاکستان آنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ثالثی میں پاکستان نے بہت شاندار کردار ادا کیا۔ ایران اب ڈیل کرنا چاہتا ہے اور ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے اور اپنی تباہ شدہ افزودہ یورینیم بھی حوالے کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں زبردست شخصیات ہیں۔ ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ اچھے فائٹر ہیں۔ امریکی صدر کا لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب۔ کہا، ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، جوہری پروگرام کی وجہ سے جنگ کرنا پڑی۔ جنگ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں بہت جلد ہمیں فتح ملنے جا رہی ہے۔ پاکستان کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، لبنان میں جنگ بندی کا اعلان خطے میں کشیدگی میں کمی اور امن بحالی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان امریکہ ایران تناؤ کم کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ تمام فریقوں کی طرف سے تحمل اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، لبنان جنگ بندی صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور دانش مندانہ سفارتی کوششوں کے ذریعے ممکن ہوئی۔ امید ہے یہ پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں دیرپا امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امن کی سفارتکاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ۔ آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ترک صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے ترکیہ آمد سے پہلے سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کیا۔ دوحہ میں امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر زور۔ جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملے۔ امریکہ ایران تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ پاک سعودی اسٹریٹجک تعاون اور باہمی شراکت داری کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا تعلیم اور پاکستانی کمیونٹی کی فلاح پر اتفاق۔ قریبی رابطے جاری رکھنے کا بھی اعادہ۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا تاریخی کردار۔ سعید عاصم منیر کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز کرتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سعید عاصم منیر کی کامیاب حکمت عملی نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کو قابل قبول ثالث بنایا، جو ان کے قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایرانی پارلیمانی کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے ملے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باقر کالیباف ایران امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی سے ملاقات۔ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ امن کوششوں کو جاری رکھنے پر زور۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی جنگ بندی اور ثالثی پر پاکستان کی تعریف۔ کہا، جنگ بندی برادر ملک پاکستان کی ثالثی میں قائم ہوئی۔ ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ مشرق وسطی تنازع کے دیرپا حل کے لیے کوشاں ہیں۔ جنگ نہیں، ڈائیلاگ ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ مذاکرات صرف پاکستان میں ہوں گے، کہیں اور نہیں۔ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، امریکہ پر نہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ پاکستان قابل اعتماد اور غیر جانبدار ثالث ہے۔ ایران خطے میں بالادستی نہیں، خود مختاری کا تحفظ چاہتا ہے۔
जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। IAEA ने भी ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने की तस्दीक की। जौहरियत के खिलाफ ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी अवाम और सालसी पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। 47 साल से ईरान अमेरिका और सिहोनी ताकतों के दबाव और ज्यादतियों का शिकार रहे। ये ताकतें अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। ईरानी अवाम का वादे तोड़े जाने की वजह से अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमरीका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से खत्ते के ममालिक और दुनिया संगीन नुकसानात उठाएगी। आलमी क़वानीन और उसूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी सदर ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मेज़बानी को काबिल कदर करार देते हुए सताइश भी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है सिहोनी हुकूमत ने आलमी उसूल की खिलाफ वर्जी की। एक हुकूमत के लिए जौहरी हथियार लेकिन पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर पूरे कौम के खिलाफ जंग। ईरान, इराक, शाम में साइंसदानों को कत्ल किया गया। मैदान में बच्चे मारे गए। क्या आलमी रहनुमाओं के ज़मीर मर चुके हैं? अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। ईरान सुन ले, इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। ईरान के पास कुछ बाकी नहीं बचा, वो आबना हुर्मस समेत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। हम जितना अरसा चाहें आबना हुर्मस को कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके। ईरानियों को अपनी सलाहियतों का इल्म है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा आबना हुर्मस की बंदिश से ईरानी बरामदात रुक चुकी है। अमरीकी फौज किसी भी वक्त दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। आबना हुर्मस दोबारा खोलने से मुतालिक आलमी रहनुमाओं का इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमा वर्चुअल इजलास की मेज़बानी करेंगे। जर्मन चांसलर भी शरीक होंगे। 40 ममालिक के रहनुमा आबना हुर्मस की सूरत हाल पर बात करेंगे। ईरान जंग बंदी के इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की बहाली पर गौर होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में बैनुल-अक़वामी दिफाई मिशन का मकसद आबना हुर्मस को महफूज और फ़आल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा आबना हुर्मस दोबारा खुलना खलीज ताउन काउंसिल और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम मसला है। GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मस उबूर कर ली। अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम माल के साथ आबना हुर्मस से निकलने वाला ये पहला जहाज है। अमेरिका ईरान जंग ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। आबना हुर्मस की बंदिश और तेल की तरसील रुकने से यूरोप जेट फ्यूल की किल्लत के संगीन खतरे से दो चार। जहाज़ों का तेल महंगा होने से एयरलाइन इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। टूरिज्म इंडस्ट्री अरबों यूरो का नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर। 3 हफ्तों में सप्लाई बहाल ना हुई तो जेट फ्यूल की किल्लत संगीन हो जाएगी। यूरोपीय तंजीम एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने खबरदार कर दिया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जेट फ्यूल की दस्तयाबी में रुकावट बरकरार रही तो मई जून में यूरोपीय आसमानों पर परवाजें नहीं उड़ेंगी। महज इत्तेफाक या बाकायदा मनसूबा बंदी। 3 साल से अमरीकी खलाई और जौहरी साइंसदानों की गुमशुदगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द इनसे मुतालिक मालूमात की यकीन दहानी करा दी। कहा इस मसले पर एक इजलास हो चुका, उम्मीद है 1 हफ्ते में अच्छा जवाब मिल जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कम से कम 8 अमरीकी साइंसदान 2023 से लापता हैं। उनके बारे में कुछ इल्म नहीं। साइंसदानों को हसास जौहरी या एरोस्पेस मवाद तक रसाई हासिल थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इनमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग, दीगर आला साइंसी शोबों के माहिरीन मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना के गवर्नर डॉक्टर पान गोइंग शिंग से भी मुलाकात। डॉक्टर पान गोइंग शिंग की वज़ीर ख़ज़ाना को बीजिंग के दौरे की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के नुमाइंदगान से भी मिले। मुल्की माशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज तेजी 100 इंडेक्स में 1119 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,71,031 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी, जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 0.8%, टोपैक्स इंडेक्स में 1.1% कमी, जनूबी कोरिया को स्पी इंडेक्स में 0.3%, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 0.4% गिरावट, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी, ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $98.05, WTI क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $93.40 रह गई, सोने की कीमत में कमी, फी ऑन्स कीमत $4,775 रह गई। भारतीय और इसराइली कुतुबो अशिया की दरामद पर पाबंदी कानूनी तौर पर दुरुस्त करार, वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार दे दी। जस्टिस सामिर फारूक ने अक्सरियती तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, खारिजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जीक्यूटिव का खुसूसी इख्तियार है, अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। पढ़ने का हक बुनियादी हक जरूर है, मगर ये मुल्की कवानीन और खारिजा पॉलिसी के तहत पाबंदियों के ताबे है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इजाफी नोट में पढ़ने के हक के साथ लिखने के हक को भी लाजमी बुनियादी हक करार दे दिया। कहा, पढ़ना और लिखना इंसान को फरसूदा ख्यालात और जहनी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने का वाहिद रास्ता है। हुब्बुल-वतनी और कौमी सलामती अहम है। कौम को जदीद चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए फिक्री तौर पर मजबूत बनाना जरूरी है। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तालबा को गूगल सर्टिफिकेट कोर्सेज मुफ्त कराएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। मरीम नवाज ने कॉलेज तालबा के लिए इलेक्ट्रोबस फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद IT लैब बनाने की मंजूरी। मुल्क में कहीं सूरज तो कहीं बादलों के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, कलमा चौक, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, समनाबाद में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मतला जुज़वी अबर आलूद। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नौशकी, शेरानी, मुसाखेल, लूरालाई, हरनाई, शोब और बारखान में भी बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिकारपुर ता सखर पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये बसें आवाम की मिल्कियत हैं, आवाम ने ही इनका ख्याल रखना है। बस का आधा टिकट हुकूमत और आधा मुसाफिर दे रहे हैं। हुकूमत सिंध ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। साजिश के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिश की जाती है। हमारे पास पाकिस्तान के बेहतरीन हस्पताल हैं। ऑटिज्म सेंटर में जो सहूलियात सिंध हुकूमत दे रही है, इसका मुकाबला पाकिस्तान के किसी इदारे से नहीं, बैनुल-अक़वामी इदारों से है। लोड शेडिंग से जो रोज़मर्रा का निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है और ना बच्चों की स्कूलिंग हो रही है, ना कुछ और बिजनेस हो रहे हैं। अभी तो प्रॉपरली वो गर्मी शुरू भी नहीं हुई कि लोग फ्रिज चलाए, फ्रीज़र चलाए, AC पंखा चलाए, लेकिन जहाँ तक बिजली की ज़रूरत है वो रसद अभी तक पूरी नहीं हो रही। लोड शेडिंग की सूरत हाल तो कि पूछो मत ना, हमें तो टाइमिंग का एक अनाया है ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें दोबारा पत्थरों वाले दौर में लेके जाने लग रहे हैं, और तो कोई नज़र नहीं आता हमें इनसे ऑप्शन। बिजली कब जाएगी, कब आएगी, कुछ पता नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नेशनल ग्रिड स्टेशन से 2300 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। लेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की आंख में चोली। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। लाहौर के ताजरों का कहना है बिजली ना होने से कारोबार ठप होकर रह गया। 7 बजे बिजली चली जाती है और 8 बजे दुकानें बंद कराना शुरू कर देते हैं। कारोबार तो तबाह हो गया है। ताजरां ने ज्यादती की 7 बजे लोड शेडिंग कर देंगे, 8 बजे दुकानें बंद हो जांदियां ने। ऐसे की करांगे, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मरने पे आज 8 दिन तो काम नहीं किया। कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, काम बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग के बारे में सोचे, और ये जो 8 बजे का टाइम किया है ये भी इसके बारे में सोचे।
पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वफाकी वजीर बराए पावर जीवीएन का तवानाई सेक्टर मुलाजमीन के फ्री यूनिट खात्मे बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम, कहा कि मुल्की तारीख में पहली बार पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म कर दिए गए। फ्री यूनिट्स का खात्मा शहरियों का देरीना मुतालबा था।